Everyone wants money in life. Everyone want to do a lot of things with the money. Everyone want to become a millionaire. Everyone want to do a lot of things with money and understand how the money works, how to invest well. So these are a lot of questions we all have, and we don't know how we can get this information. So today we are going to talk about the psychology of the money. Hey guys, मैं रौनक and welcome back to another episode. Today we are going to talk about psychology of the money, one of my current favorite book. I read this book last week. Actually, I posted a poll on the Instagram that which book you want me to review or which book you want me to talk about the summary, and most of the people say they want to know about the psychology of the money. So today we are going to talk about what is the psychology of money, how the things work in the money, and what is the reason behind all the concepts of the investing, mutual funds, and the money. Doing well with the money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Well, this book starts with this line, and this actually the first chapter talk about this thing, and I really love that because everyone has different understanding of the money. Today I know that how the money works, how the mutual funds work, because I have read that and I understood, because I started investing at the age of 20. So I know that how the investing works. मगर जिसको investing के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसको money के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो money को किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, विच इज़ डिफरेंटली. सो हर किसी का बिहेवियर मनी के बारे में अलग होता है. जिसकी रिच फैमिली है उसे लगता है कि मनी इज़ वेरी चिल्लर, उसे बहुत सारे पैसे. जो पुअर फैमिली है उसे लगता है कि यार मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दे शुड सेव मोर, दे शुड अर्न मोर. जो मिडिल क्लास फैमिली है उन्हें लगता है कि सेव भी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए. सो मनी के बारे में हर किसी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. डोंट ट्राई टू जंगल बिटवीन ऑल दोज थिंग्स कि यार मनी की एक ही डेफिनेशन है और एवरीथिंग कम्स अंडर द सेम रूफ. Everyone has different understanding of the money. So whenever you meet a person or whatever he is saying, try to just understand those things. Don't try to get intimate with all the information. The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving, and we should know when to stop or else you will become Harshad Mehta. I already watched The Scam 1992 and I really love that web series. It's absolutely amazing. You should definitely watch that. The reason I want to say, because this book talk about the concept of goalpost to stop moving. What is the exactly meaning? हम सबको मिलेनियर बनना है, सबको चाहिए कि यार मिलेनियर बनना है, जो सबके लोग करते हैं वो सब कुछ करना है. बट द प्रॉब्लम इज़ यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना चाहिए. मुझे लगता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू सर्वाइव रियली वेल, आई वॉन्ट अ गुड लाइफ, गुड फैमिली लाइफ, गुड एवरीथिंग, आई कैन टेक द वेकेशन. सिर्फ इतनी मेरे लिए इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. सो आई नो माई गोल कि ओके, अगर मैं साल के 10 लाख रुपए कमाता हूँ, या इफ़ आई कैन अर्न 10 lakhs पर ईयर, देन आई वॉन्ट इनफ, दैट्स इनफ फॉर मी. आई नो दैट माई गोल के उससे ज़्यादा भी मिला तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आई वॉन्ट मोर, बट यू शुड नो कि आपका लिमिट कितना है, आप कितना आपको चाहिए. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए. अगर उससे ज़्यादा चाहोगे देन यू विल बिकम समथिंग लाइक हर्षल मेहता, कि जिसको फर्स्ट शेयर मार्केट में जाना था, फिर मनी मार्केट में जाना था. ही वॉन्ट एवरीथिंग अबाउट मनी 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 एंड एवरीथिंग. बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि आपको कितना चाहिए. यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आपको कितना चाहिए. क्या आपको अंबानी बनना है, देन यू नीड अ लॉट ऑफ मनी. बट क्या एक्चुअली में आपको अंबानी बनना है, या उनकी जो लाइफस्टाइल है उनका ही आपको चाहिए, वो जो लाइफस्टाइल यूज करते हैं या लाइफस्टाइल में रहते हैं वही आपको चाहिए. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस स्मॉल लिटल थिंग दैट फर्स्ट मेक श्योर कि आपका जो गोल पोस्ट है, आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आपको जो फाइनली चाहिए. यानी कि सपोज एट द रिटायरमेंट आई वांट 1 करोड़, या एट द रिटायरमेंट आई वांट 50 lakhs. ऑब्वियसली आप अगर 20s में हो तो यू स्टिल हैव 3 decades, so you can make that much money, but you should limit yourself कि आपको कितना चाहिए. First you should understand that and then decide कि what type of investment you want to do. Getting money and keeping money entirely different thing and required an entirely different mindset and strategies. You all heard that कि बुक्स बाय करना एक हैबिट होती है और बुक्स रीड करना एक हैबिट होती है. जिसको कवर्स पसंद है वो सिर्फ बुक्स बाय करता है, और जिसको पढ़ना है एक्चुअली वो रीडिंग के लिए बाय करता है, और वो कुछ भी रीड कर सकता है. सो दिस इज़ द सेम डिफरेंस बिटवीन द गेटिंग मनी एंड द कीपिंग मनी. गेटिंग मनी मतलब आपका जॉब, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप जितने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो. गेटिंग मनी इज़ काइंड ऑफ अ रिस्की जॉब. आपको रिस्क बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. एंड दीज ऑल थिंग्स अबाउट द गेटिंग वेल्दी और गेटिंग मनी. But keeping money is ultimately different mindset. For the keeping money you have to spend really well. Unnecessary खर्चा नहीं करना चाहिए. Unnecessary अगर मुझे कुछ शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं बिन
उस पर पैसे ही कुछ खर्चो. लाइक आई वियर काइंड ऑफ सेम शर्ट, आई मीन मेरे पास सेम ही शर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वे. आई डोंट स्पेंड मच ऑन द शॉपिंग, आई डोंट स्पेंड मच ऑन द आईफोन बिकॉज आई एम ओके विद द एंड्रॉयड. मेरे फ्रेंड्स के पास आईफोन है बट आई डोंट थिंक कि वो उसकी मुझे ज़रूरत है. सो कीपिंग मनी एंड द गेटिंग वेल्दी इज बोथ आर द डिफरेंट थिंग. To make money you need kind of a risk job or you have to be a risk taker, और keeping money you have need a different mindset जहाँ पे आप savings करते हो, जहाँ पे आप unnecessary खर्चा नहीं करते हो. So you have to understand कि आप कितना खर्चा करते हो, then you can save a lot of money. And getting money you have to be a little bit, you need a little bit of a risk factor. Use the money to buy freedom. The ability to do what you want when you want with who you want is as long as is priceless. So it's very important. You have to understand the difference between the money and the time. There will be a different video on this topic, that money versus time, which will open your mind and we will understand what I want to say. ओके, मनी कमाना एक चीज़ है बट द प्रॉब्लम इज़ मनी कमाते कमाते हम पूरी लाइफ उसके पीछे ना लगा दें, विच इज़ लॉट ऑफ पीपल डू. फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी बैंकिंग या किसी भी जॉब पर्सन को देख लो, वो हफ्ते के 6 घंटे काम करता है, हफ्ते के 8 या 10 घंटे, लाइक दिन के या 8 या 10 घंटे काम करता है और हफ्ते के 5-6 दिन काम करता है. उसके लिए फैमिली टाइम नहीं है, उसके लिए वेकेशन के लिए टाइम नहीं होता और उसके लिए खुद के भी टाइम नहीं होता. डू यू रियली वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कि आप पैसे कमा रहे हो लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें करने के लिए नहीं है, उस पैसों से क्या करोगे? और दूसरा पर्सन है कि जो एवरेज मतलब डिसेंट अमाउंट कमाता है बट उसके पास टाइम है, उसके पास फैमिली के लिए देने के लिए टाइम, उसके पास खुद के चीज़ें करने के लिए टाइम है. एंड दिस लिटरली चेंज्ड माई माइंड. आई एम डूइंग दिस फ्रॉम द लास्ट 2 years. अगर आपने मेरा बर्थडे का वीडियो देखा है देन यू नो दैट मैंने मैकेनिकल का जॉब क्विट किया बिकॉज मैकेनिकल जॉब इज़ लाइक 10 घंटे का मेरा जॉब था वो, और समटाइम्स वो वीकेंड पे भी बुलाते थे. एंड आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. वहाँ पे अगर पैसे भी अच्छा होता तो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. आई वांट फ्रीडम. So I used all my money to buy freedom. I started my blogging journey, I started my freelancing journey. Now I have my own time, like I can do whatever I want to do. Tomorrow अगर सुबह उठ के मुझे लगा कि यार मुझे काम नहीं करना है, then I can take the vacation, I can take the holiday. But जो जॉब लोग हैं उनके पास तो ये नहीं कर सकते. मतलब अगर वो हर दिन बोलेंगे कि यार मुझे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए, तो 1 हफ्ते के लिए इस फर्स्ट टाइम मिल जाएगी, सेकेंड टाइम तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, राइट? So you have to understand that use your money to buy freedom. Don't use your money to buy stuff. Otherwise, you will have life without happiness. Wealth versus rich. People who live in the big house or the drive fancy cars are rich. Where in other side the wealth is hidden. Wealth is an income that is saved, that is not spent. Wealth is optional, flexible, and the growth. Well, you see that a lot of people go for the fancy cars, जिनके पास Ferrari है, i20 है. But do you think they are kind of a rich person? उन्होंने पैसे लगा के वो चीज़ें बाय की है, उनके पास चीज़ें हैं, पैसे नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन बाय स्टफ बट देन यू विल नॉट हैव मनी. बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेल्दी लाइक द वॉरेन बफेट और उनके जैसा, या इंडिया में राकेश झुंझुनवाला, इनके जैसे बनना है, देन यू हैव टू बी वेल्दी. वेल्थ इज समथिंग दैट यू नीड फ्रीडम. अगर वेल्थ है तो आपके पास फ्रीडम है. अगर वेल्थ चाहिए तो वेल्थ हिडन होती है, वेल्थ दिखाई नहीं देती. वॉरेन बफेट को आपने देखा होगा कि वो अपनी रेगुलर कार में जाता है, अपने वही घर में रहता है, बट उसकी वेल्थ सबसे ज़्यादा है. और दूसरे साइड पे देख लो कोई भी पर्सन कि जो बहुत रिच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जीता है, उसके पास चीज़ें हैं बट पैसे नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट. रिच इज़ नॉट ऑलवेज वेल्दी एंड वेल्दी इज़ नॉट ऑलवेज द रिच, बट वेल्दी हैव द फ्रीडम. दे हैव द फ्रीडम टू बाय एनीथिंग वेन एवर दे वॉन्ट. So understand the difference between the wealth and the rich. Save money, save a lot of money. Your saving rate should be much more than your income rate, or saving rate should be much more than the investment rate. Because see, understand that saving is really important. Even I believe that saving, जितना आपको investing important है उतना ही आपका saving भी important है. Because सेविंग की वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते. लाइक मैंने इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट मनी, इस बुक में मैंने भी ये, इस रिव्यू में भी मैंने कहा था कि सेविंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो आप अनसर्टन टाइम में कुछ नहीं कर सकते. बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स. फर्स्ट वन इज़ प्रेडिक्टेबल इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज़ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स. प्रेडिक्टेबल इवेंट्स आर दोस्त की जो आपको पता है, आपकी शादी होने वाली है, आपके बच्चे, आपकी रिटायरमेंट, आपका हाउस, आपकी कार, ये सारे प्रेडिक्टेड इवेंट्स हैं, मतलब आपको फिक्स्ड इवेंट्स है, तो इसके लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा. बट अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी, लोन या कुछ भी ये चीज़ें आ सकती, तो उसके लिए आपको अनसर्टेनिटी के लिए आपको रेडी रहना होगा. और उसके लिए आप तभी रेडी रह पाओगे अगर आपके पास सेविंग सबसे ज़्यादा हो.
तो सेविंग शुड बी मच इक्वली इंपॉर्टेंट दैन द इन्वेस्टिंग। दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस दो अगर आपको मनी के साथ काम करना है तो। यू माइट थिंक यू वांट एक्सपेंसिव कार, अ फैंसी वॉच, अ ह्यूज हाउस, बट आई एम टेलिंग यू, you don't. What you want is respect and admiration from the other people, and you think having expensive car will bring it. It rarely does, and no one cares about it. Let me be honest with you. मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आई एम नॉट लाइक, आई यूज़ वेरी बेसिक HP लैपटॉप, आई डोंट हैव एक्सपेंसिव कार, आई डोंट हैव एक्सपेंसिव वॉच। और एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के पास iPhone है, मेरे फ्रेंड्स के पास iMac है, iMac Pro है, बट आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी फॉर मी। इफ़ आई कैन डू माई वर्क विद द लिटल स्टफ देन आई डोंट नीड काइंड ऑफ दिस थिंग। एक तो पैसे भी बहुत चाहिए और सेम काम करने के लिए 1 लाख खर्च करने से अच्छा है आई कैन गेट ए डिसेंट सर्विस विद द 40,000 50,000 रुपये। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये आप क्यों खरीदना चाहते हो, आपको फैंसी कार क्यों चाहिए, आपको बड़ा घर क्यों चाहिए, आपको एक्सपेंसिव वॉच क्यों चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। You don't need all these things. You don't have to impress anyone. You just keep your life happy and grateful. Growth is driven by compounding, and compounding always takes time. I always say that compound effect is one of the 8th wonder of life, and you have to give it a time if you want to understand the compound effect. And time is variable that will decide your future. अगर आप एक एक दिन या एक एक टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हो, then you will have at the best results at the end of your life, or maybe within 1-2 years, because compounding takes time and you have to give it a time for that overnight success. True success and understanding of money are exiting some rat race to modulate one's activity, peace of the mind. This is at the end of the book and this is very very close to my heart and which is one of my favorite. The problem is success और ये सब कुछ का है, ये तो रैट रेस है, मतलब हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ रेस है, रैट रेस जीतना चाहते हैं। बट डू यू रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस राइट रैट रेस? वेल आई डोंट थिंक सो, मुझे इसमें से रैट रेस में से नहीं पार्ट करना था। सो ये मैंने कंपटीशन एग्जिट कर दिया। नाउ आई एम डूइंग वॉट एवर आई लव, नाउ आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट एट वॉट एवर आई टाइम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू. So this is something I am exiting the rat race. It's peace of mind. I have a peace of mind. I don't have any tension. I don't have any stress. I don't have any kind of a boss that he's looking for me और वो कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं. So this is what I realized, that you have to exit the rat race if you want a really peace of mind or if you want to really become successful in your life. And these are the only way to exit the rat race. If you exit the rat race, then you will literally become a lot more successful than any other guy, because you don't have anything to countable, you don't have to do anything you like the other people are doing. So this is something I realized at the end of this book. So these are the few lessons that I want to talk about the psychology of the money. There are many lessons available in the books with a lot of great examples. I have given the link in the description. You can go buy this book. You should definitely read this book if you want to understand in a much deeper way, because I have not covered the examples here. But if you want to take the examples, or if you want to see the examples, then go and read this book, buy this book. This book is really beautiful and this will help you to understand how the money works. But if you are under 20 years old, then I will not suggest to go with this book. Better to go with the Let's Talk Money by the Monica Helen. But if you are about 20 or about to at the age of 25 or 30s, then you should definitely understand this book, because at this stage you know the investing factor, you know the different concepts about the money. So if you are at this age, then you should definitely pick up this book. But I hope I have able to cover the lot of things about this, and I hope this video is help you to make better decision with the money, and you little bit know how the psychology of the money works. And I will see you in my next video. Bye bye, tata, take care.